Hello, third years. Good morning. Once again, we are in the sampling and types of sampling. हमने कल पढ़ा था in probability sampling. See, once I am revising this thing. In probability sampling, first simple random sampling we already done. A simple random sampling, stratified we already done. Today I'll see systematic cluster and cluster also called the multi-stage sampling, and next is sequential. Today we'll finish this three types of sampling. So let's start with the I hope कि आप लोगों को simple random sampling and this stratified random sampling समझ में आया होगा. बहुत टाइम हमने कल इस दो में दिया है बेटा, इसलिए मैं अब नहीं दूंगी इसमें टाइम. आप थोड़ा सा अगर कुछ क्लियर नहीं हो तो पर्सनली मुझे पूछ सकते हो, जिसको जिसको भी क्लियर नहीं हो. Today we'll see next one is systematic random sampling. As the name is saying, the systematic random sampling, definitely it is very systematic. इसमें हम कहीं से कुछ भी नहीं उठाएंगे. This is systematic, so we'll go like systematically only. See, in this what this is telling, it can be linked, it can be likened to arithmetic progression wherein the difference between any two consecutive ये सब मत पढ़ो. See, this second sentence is good. It involves the selection of every kth case from list of group, such as every 10th person on a patient's list of every 100% from the phone directory. See what this is telling. Let me show you some images ताकि आप लोग को समझ में आए एग्जाम्पल के साथ में. See, this is systematic sampling. Selecting unit or a person after regular interval. Understand? मतलब regular interval से ही आपको select करना है. जैसे see here, what the researcher is doing, every third he is selecting. जैसे first second drop किया, third he is selecting. Again first second drop किया, again third he is selecting. Again first second drop करके again third he will select. देखो अगेन आफ्टर टू इट सिलेक्टेड थर्ड, आफ्टर टू सिलेक्टेड थर्ड, आफ्टर टू सिलेक्टेड थर्ड. अंडरस्टैंड? तो दिस इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. मतलब हम नॉट ओनली थर्ड लेना है, इट इज़ अगर आप फिफ्थ ले रहे हैं तो यू विल टेक द फिफ्थ वन ओनली. अंडरस्टैंड? इसलिए इसको सिस्टमैटिक बोलते हैं. सी दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सी इट वुड बी बेटर. See, in this what the researcher has done, researcher has took the eighth element. Understand? तो eighth वाला category को उनको चाहिए. Eighth he took, तो again here he took 28, again he took 48. It's his choice. Understand? वो उसकी choice है कि every eighth he is selecting. Now next is next example I am showing you. This would be very clear for you. ये this is very better example. See मैं अभी जूम करके दिखा रही हूँ आपको. जूम के साथ में मेरा पेंसिल वर्क नहीं करेगा, पेन ब्रश यूज़ नहीं कर पाऊँगी, इसलिए आप पहले जूम करके देखिए इसको. Here the researcher took every third. See, उसने थर्ड लिया है, उसने 13 लिया है. अंडरस्टैंड? उसके बाद अगेन ही टुक 3 से लेके 13 तक के 10th गैप है. मतलब ही इज़ टेकिंग एवरी 10th एलिमेंट. अंडरस्टैंड? हर 10वां एलिमेंट को ही इज़ टेकिंग. तो थर्ड के बाद ही टुक 13, 13 के बाद ही टुक 23. आई होप सो. सी इसमें हमको बेटर क्लियर होगा. सी ये पूरा लिस्ट आउट किया है फर्स्ट से लेके उसने 100 तक लिस्ट आउट किया है. अंडरस्टैंड? और व्हाट ही हैज़ सिलेक्टेड. सी हियर ही हैज़ सिलेक्टेड द थिंग्स. फर्स्ट 3 ही सिलेक्टेड, 13 he selected, 23 he selected, 33 selected, because every 10th element he is selected. हर 10वां एलिमेंट को उसने सेलेक्ट किया है. 3, 13, 23, 33. वो हर फिफ्थ को भी कर सकता है, हर 33 थर्ड को भी कर सकता है. अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक. अगर वो एवरी 10th को ले रहा है तो हर 10th को ही लेना पड़ेगा. वो बीच में 23 को ना लेके 24 नहीं ले सकता है. दिस इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. अंडरस्टैंड? सिस्टमेटिकली सारे पॉपुलेशन को
वो गैदर करके उसको लिस्ट आउट करेगा। जैसे इसमें आप देख पा रहे हो उसको सारे, दिस इज़ होल पॉपुलेशन, 1 से लेके 100 तक के पूरे पॉपुलेशन है। अगर आपके पास 500 स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, तो यू विल टेक ऑल द 500 स्टूडेंट्स नेम लिस्ट इन ए कंप्यूटर और इन ए पेज और व्हाटएवर, और कोडिंग आप जो भी उनको देना चाहो, and then after you will categorize them 1 to 100, 1 to 500, and now you will select the, if you would like to have जितना आपका सैम्पल साइज होगा आप उस तरीके से सिलेक्ट करोगे। जैसे 500 सैम्पल में अब आपको मान लो 50 लेना है, तो आप कितना कितना गैप करके लोगे तब आपको 50 सैम्पल मिलेंगे। दैट इज़ योर कैलकुलेशन दैट यू हैव टू डू, अंडरस्टैंड। तो दिस इज कॉल्ड दी सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट विल सी Next we'll see merits and demerits for this. Merits are telling convenient and simple to carry out. जैसे stratified हमने देखा था, stratified is 2 step सिलेक्शन क्राइटेरिया है, 2 स्टेप लगता है उसमें। पहले तो हमने स्ट्रेटा पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड किया, देन सब पॉपुलेशन में हमने सिंपल रैंडम SRM अप्लाई किया, तो उसके बाद हमने सैम्पल सेलेक्ट किया, ठीक है। बट इसमें हम डायरेक्टली, इसमें किसी प्रकार के 2 स्टेप 3 स्टेप नहीं है, हमने डायरेक्टली अप्लाई किया, राइट। तो दिस इज क्वाइट कन्वीनियंट फॉर फ्रॉम दिस स्ट्रेटिफाइड, अंडरस्टैंड। तो कन्वीनियंट भी है, सिंपल भी है। सिंपल है कैरी आउट करने के लिए क्योंकि एवरी 10th लेना है, उसमें कोई नाटक नहीं है। सो नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल इज स्प्रेड इवनली ओवर द एंटायर गिवन पॉपुलेशन। इसका बेनिफिट ये है कि जितना भी एंटायर पॉपुलेशन है वो, ऑल दैट एंटायर पॉपुलेशन डेफिनेटली गिवन इक्वल चांस टू एवरीवन, बट सारे को हम एक साथ ही स्प्रेड करके एक साथ ही डिस्ट्रीब्यूशंस कर देते हैं, तो इट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर रिसर्चर। लेस cumbersome, time consuming and cheaper, definitely time consuming, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कम लगता है, फटाफट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। चिपर है और ना कम, ज़्यादा कम्बरसम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा, एरर्स ज़्यादा नहीं आते हैं। नेक्स्ट demerits are, if first subject is not randomly select, if first subject is not randomly select then it become a non random sampling technique. if subject is not randomly selected, see सही बोल रहा है ये सेंटेंस क्योंकि हम वी आर इन दी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ रहे हैं, और हम इसमें जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था, आपने देखा होगा। इस एग्जांपल में देखो, जैसे हम 3rd से लेके 13 तक शुरू कर रहे हैं। अब हमारा इसमें से फर्स्ट और सेकंड जो है, 1 और 2 सैंपल जो है वो तो उनका तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ ना, तो दिस इज़ द डीमेरिट्स ऑफ दिस सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये सेंटेंस यही बोल रहा है, इफ़ द फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ नॉट रैंडमली सिलेक्टेड, अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपको फर्स्ट से ही सिलेक्ट करना है, नहीं तो ये इसका डीमेरिट्स कहलाएगा, ठीक है। समटाइम्स दिस मे रिजल्ट इन बायस्ड सैम्पल। बायस्ड कैसे होगा मैंने बताया था, इफ़ यू आर सिलेक्टिंग एवरी 5th एवरी 7th तो यू नीड टू सिलेक्ट एवरी 7th ओनली, नहीं तो बायस्ड हो जाएगा वो। और कभी कभार मान लो 500 पॉपुलेशंस है, मान लो 100 पॉपुलेशन है और आपका 10 सैम्पल आपको 100 पॉपुलेशन में लेना है, तो आपको कितना गैप दे के लेना पड़ेगा, 10 का गैप दे के लेना पड़ेगा, ठीक है। और आप वहाँ पे क्या कर एवरी 5th गैप दे के ले रहे हो, तो कितना सैम्पल हो जाएगा, वो 20 सैम्पल हो जाएगा, तो वो फिर बायस्ड हो जाएगा, वो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए these are the demerits of the this sampling. If sampling frame has non randomly, this sampling technique may not be appropriate to select representative samples. Definitely अगर आप सैम्पलिंग फ्रेम को नॉन रैंडमली अगर रखे हो, प्रॉपर नहीं रखे हो, तो ये जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दीज आर दी डीमेरिट्स ऑफ दिस सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट विल सी क्लस्टर और मल्टी स्टेज। दिस टू नेम क्लस्टर और मल्टी स्टेज से समझ में आ रहा है, देयर विल बी 2-3 स्टेजेस, तब जाके हम सैम्पल सेलेक्ट कर पाएंगे। क्लस्टर मीन्स होता है जैसे ग्रैप्स क्लस्टर, अंडरस्टैंड,
ग्रैप्स का झुंड या फिर गुच्छा, यू कैन से ऑल्सो, अंडरस्टैंड। और क्लस्टर, अब लेट मी शो यू फर्स्ट एग्जांपल, बिकॉज दिस सेंटेंस इज आपके माथे नहीं पड़ेगा, मतलब आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए फर्स्ट विल गो टू दी क्लस्टर सैम्पलिंग। See, this would be very clear for you. See, this is complete population of, सोचो इसमें कितने हाउसेस हैं, कितने होम्स हैं। These are the populations. For example, this is Rangwasa. Okay. Now in this Rangwasa, we will apply the, we will select, for example, it has 500 population, understand, or and we need to have 50 sample. What we will do, this 500 population will be divided into small groups। देखो जैसे ये डिवाइड किया ऐसा, ये डिवाइड किया ऐसा 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 ऐसा, और ऐसे ऐसे स्मॉल क्लस्टर्स बना दिए, ठीक है। अब इसको सब डिवीजन किया हमने, स्मॉल ऐसे ऐसे क्लस्टर्स बना दिए, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं। अब होल पॉपुलेशन को स्मॉल पॉपुलेशन में डिवाइड करना, उसको डिवाइड, जैसे मैंने बताया था उसमें स्ट्रेटिफाइड में पूरे पॉपुलेशन को ट्रेड्स के अकॉर्डिंग, एज, जेंडर के अकॉर्डिंग सब पॉपुलेशंस में, मतलब उसके छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते, दैट वी कॉल दिस स्ट्रेटा। बट वन थिंग इज रिमेंबर हियर, इसमें बिना किसी ट्रेड्स के आप पूरे पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड करोगे, दैट ईच सब पॉपुलेशन वी विल कॉल द क्लस्टर, understand। And from the each cluster, from each cluster you will apply the, either you will apply the systematic random sampling or you will apply the simple random sampling, understand। This is called the cluster। Now let me read once। It is done with when simple random sampling is almost impossible because of the size of the population। definitely ये जब simple random sampling हम नहीं कर पाते हैं इतने सारे लोगों में, तब जाके हम ये cluster sampling यूज़ करते हैं। Cluster sampling means random selection of sampling unit consisting of population elements, then from each selecting sampling unit a sample of population element is drawn by either simple random selection or the stratified random selection। This method is used in cases where the population elements are scattered over a wide area. It is impossible to obtain a list of all elements। The important thing to remember about this sampling technique is to give all the clusters equal chance of being selected। Yes, this is the important thing जो मैं आपको skip की हूँ, is जैसे ही आपने cluster बनाया cluster, जैसे cluster sampling means random selection of sampling unit consisting of population। See, मैंने आपको इसमें क्या बताया था, this whole population को हम क्लस्टर्स में डिवाइड किए, अंडरस्टैंड। और उसके बाद हर एक, फॉर एग्जांपल इट इज़ हैव 5-10 क्लस्टर्स में हमने इनको डिवाइड किया, एंड वी विल गिव दिस ऑल क्लस्टर्स इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड। ऐसा नहीं कि हमने 2 क्लस्टर्स को हटा दिया और फिर उसमें से हमने सिलेक्ट किया, ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास 500 पॉपुलेशन है तो आप इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करके हर क्लस्टर को इक्वल चांस दोगे सिलेक्ट होने का, अंडरस्टैंड। और इसमें आप सिस्टमेटिक नहीं यूज़ करना है, और इसमें आप स्ट्रेटिफाइड भी यूज़ कर सकते हो। अब स्ट्रेटिफाइड कब यूज़ करोगे, आप 500 पॉपुलेशन में आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं, बट इफ़ यू हैव 5 lakhs और 5000 पॉपुलेशन, तब आप उसमें क्या करोगे, आप क्लस्टर सिलेक्ट करोगे। फ्रॉम ईच क्लस्टर यू विल अप्लाई दिस स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग है जो क्लस्टर्स को और छोटे छोटे टुकड़ों में काटेगा, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों, मतलब उसके और सब पॉपुलेशंस बनाएगा, तब जाके उसमें हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई, ऐसे कर करके हम मल्टी स्टेजेस कर करके सैम्पल सिलेक्ट करते हैं, दैट वी call the cluster sampling, understand। Now next we'll see merits and demerits of this thing।
और हमेशा ध्यान रखना क्लस्टर सैम्पलिंग इज़ फॉर ओनली फॉर द लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में ही हम क्लस्टर सैम्पलिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेरिट्स आर इट चीप, क्विक एंड ईजी फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन। बट लार्ज पॉपुलेशन के लिए ही चीप और इजी है। अंडरस्टैंड, चीप इजी इसलिए है क्योंकि इतने सारे पॉपुलेशंस का मोर देन 5000 मोर देन 10,000 पॉपुलेशन को आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या फिर सिस्टमेटिक में ये सब कर नहीं सकते हो। इसलिए दिस इज़ वेरी ईजीएस्ट फॉर द लार्ज पॉपुलेशन। लार्ज पॉपुलेशन के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं है। Large population can be studied and require only list of the members. लार्ज पॉपुलेशन के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपने उसको सब क्लस्टर्स बनाया, सब पॉपुलेशंस बनाया, देन आप उसमें से लिस्ट रेडी कर सकते हो। उसको और छोटा कर दिया आपने, तो ये उसके मेरिट्स होंगे। इन्वेस्टिगेटर्स टू यूज़ एग्जिस्टिंग डिविजन सच एज डिस्ट्रिक्ट, विलेज। डेफिनेटली अगर आप इंदौर जोन को ले रहे हो, मान लो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, तो you will divide that in Indore there are various area like विजयनगर, लाइक पलासिया, तो आप ऐसे क्लस्टर्स बना दोगे। अंडरस्टैंड, इंदौर को कंप्लीट इंदौर पॉपुलेशन को आप क्लस्टर्स में डिवाइड करोगे, तो ये छोटे छोटे क्लस्टर्स निकल जाएंगे आपको। विजयनगर, खजराना, बंगाली एंड पिपलियाना, ये दीज आर दी क्लस्टर्स बन जाएंगे। फ्रॉम ईच क्लस्टर यू विल अप्लाई दी सिंपल। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि बंगाली बहुत बड़ा एरिया है जहाँ मोर देन 2000 पॉपुलेशंस रहते हैं, तो यू विल अप्लाई दिस स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अंडरस्टैंड? So next we'll see the same sample can be used again for study। हाँ डेफिनेटली सेम सैम्पल हम इसमें स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। डीमेरिट्स आर दिस टेक्निक इज़ द लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ देखो, एग्जांपल ये बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग रिसर्च इन दी कंप्लीट इंदौर एंड you took the Bengali square people, you took the Bengali square people for the selection। Understand? And Bengali square में से you took at around 1000 population, 5000 का population मान लो, उसमें से आपने 1000 members आपने select किया, but that all 1000 members are can't be the representative। जैसे आप इंदौर नर्सिंग कॉलेज के 500 में से एक क्लास या 5 स्टूडेंट्स लेते थे, तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अब क्या 1000 लोग रिप्रेजेंटेटिव होंगे? नॉट एट ऑल, नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ हाई सैम्पलिंग एरर। इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशंस बहुत हैं, बहुत मल्टी स्टेजेस हैं, तो देयर इज़ अ चांस ऑफ एरर। अंडरस्टैंड? दिस टेक्निक इज़ नॉट एट ऑल यूज़फुल, क्योंकि हमारे नर्सिंग में हम इतने लार्ज पॉपुलेशन के साथ में बहुत कम स्टडी करते हैं, इसलिए ये यूज़फुल कम है। नेक्स्ट इज सिक्वेंशियल। we'll see। सिक्वेंशियल मीन्स दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, थोड़ा सा अलग है ये। सिक्वेंशियल में एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे फर्स्ट यू रीड दिस मेथड इज सैम्पल सिलेक्शन, दिस मेथड ऑफ सैम्पल सिलेक्शन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हियर द सैम्पल साइज इज नॉट फिक्स्ड। The investigator initially selects small sample and tries out to make inferences। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे पहले हम हर सैम्पल सेलेक्ट करने से पहले हमारा सैम्पल साइज डिसाइड होता है कि हमको 50 लेना है, 60 लेना है, तो उसके बाद ही हम सैम्पल सिलेक्ट करते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर पहले से कोई भी सैम्पल साइज डिसाइड करके नहीं रखता है। वो अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग ही सैम्पल लेता है। जैसे पहले वो क्या करेगा, 5 सैम्पल लेगा। ठीक है, 5 सैम्पल लेके वो पूरे प्रोसेस करने के बाद वो सोचेगा कि 5 सैम्पल में ही मेरा रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, बट रिज़ल्ट फिर भी इन्फ्रेंसेस फिर भी अच्छे नहीं आते, तो उसमें एडप्ट करता है। फिर से 10 उसमें एडप्ट करेगा सैम्पल, फिर से इन्फ्रेंसेस निकालने की कोशिश करेगा, फिर भी सेटिस्फैक्ट्री और क्लियर कट इन्फ्रेंसेस नहीं निकलेगा, तो फिर उसमें वो 15 एडप्ट करेगा। तो ऐसे थोड़े करके वो एडप्ट करता है, जब तक वो इन्फ्रेंसेस क्लियर ना ही हो जाते और अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते, तब तक वो थोड़े अमाउंट में सैम्पल्स एडप्ट कर करके रिजल्ट निकालता है। तो दिस इज कॉल्ड सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। अंडरस्टैंड?
So merits and demerits, this is quite different from others. So first, facilitate to conduct a study on best possible smallest representative sample. सबसे इम्पॉर्टेंट मेरिट सही है कि इसमें इन्वेस्टिगेटर्स जो होता है वो बहुत कम से, मतलब मेहनत उसको शुरू में कम लगती है, स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेता है. जैसे 5 लिया है तो 5 इज़ मोर गुड रिप्रेजेंटेटिव ना, 5 ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे. नेक्स्ट इज हेल्पिंग इन अल्टीमेटली फाइंडिंग देयर इन्फ्लुएंसेस. हाँ सी, हमारा टारगेट 50 होता है लेने का, जब हम बाकी करते हैं तब 50 टारगेट रहता है, बट इसमें उसका टारगेट 50 है ही नहीं. वो बहुत उसका अल्टीमेट फाइंडिंग से ही रहता है कि उसका रिज़ल्ट अच्छा आए, चाहे वो 5 सैंपल मिले. सोचो अगर 5 सैंपल मिले कि उसका रिज़ल्ट अच्छा आ जा रहा है तो उसमें क्या बुरा है, राइट? तो उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी. नेक्स्ट इज डिमांड्स आर with the sorry with this sampling technique, it is not possible to study a phenomena, right, which need to be studied at one point of on a time. सी, मान लो आपको रंगवासा में आप स्टडी कर रहे हैं और आप रंगवासा के पेपर्स को आप क्या बार बार जाएंगे, अरे यार मेरे से एक ही बार में प्लीज़ एक बार और लेने दो सैम्पल? इज़ इट पॉसिबल? मतलब आप बार बार उस उनके इंस्टीट्यूट में, उनके गांव में जाओगे, वो इरिटेट हो जाएंगे आपसे. आप कम से कम मोर देन 5 टाइम्स आप जा पाओगे. अगर आपका इन्फ्लुएंसेस क्लियर नहीं होता है तो क्या आपको इतना टॉलरेट करेंगे? वो नॉट एट ऑल. तो ये सूट नहीं करता है. रिक्वायर रिपीटेड एंटायर एंट्रीज इनटू द फील्ड टू कलेक्ट द सैंपल. बार बार आपको जाना है, पीपल इरिटेट हो जाएंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है. और जैसे आप मान लो कोई फिनोमिना कर रहे हैं आप गांव में, मान लो हैंड वॉशिंग पे आप प्रोसीजर करवा रहे हैं वहाँ के लोगों को, आप 10 लोगों को बुला के वहाँ पे हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं उनको. आप फिर रिजल्ट सही नहीं आया तो फिर से हैंड वॉश कराओगे, फिर से रिजल्ट नहीं आया फिर से हैंड वॉश कराओगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल ना. तो इसलिए these are the demerits of this sequential. तो this was all about the probability sampling technique. अब आप रिवाइज कीजिए, मेरे लेक्चर को पढ़िए, जहाँ पे भी कुछ भी डाउट आता है मुझे एक बार आप पूछ लीजिए. थैंक यू.